Good morning, students. Today I will revise the whole chapter of chapter number 6, class 8, combustion and flame. Right? In previous lecture we completed the whole exercise, so I will revise the whole chapter again. Right? Firstly, we start the choose the correct option. First is, what is the substance which gives heat and light on combustion called? What is a substance which gives heat and light on combustion called fuel? Okay. By which reaction in the sun are heat and light produced? By which reaction in the sun are heat and light produced? कौन से रिएक्शन से? न्यूक्लियर रिएक्शन. विच रिएक्शन? न्यूक्लियर. Now next one, which of the following is a non-combustible substance? Non-combustible substance कौन सा है? Asbestos is a non-combustible substance जो बर्न नहीं होता है. Next, which of the following substance does not burn with the flame? वो फ्लेम से बर्न नहीं होता है. Which of the following substance does not burn विद द फ्लेम? फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता है. बर्न होता है पर फ्लेम के साथ नहीं होता है. कौन सा है? कोक. कोक डज नॉट बर्न विद द फ्लेम. नेक्स्ट, विच इज नॉट यूज एज फायर एक्सटिंग्विशर्स? विच इज नॉट यूज एज okay. Next, which of the following is not a type of a combustion? Which of the following is not a type of a combustion? Blast is not a type of a combustion. Okay. Blast is not a type of a combustion. Next, what is the color of outermost zone of the candle flame? What is the color of outermost zone of the candle flame? Blue color. Okay. Next, which of the following fuel has higher calorific value? Higher calorific value. Hydrogen has a higher calorific value. Next, which gas is responsible for a global warming? Which gas is responsible for a global warming? Which gas? Carbon dioxide is responsible for the global warming. Right? Next, filling the blanks. Burning of wood and coal cause dash of air, pollution of air. A liquid fuel used in home is dash. A liquid fuel used in home is kerosene. Fire fuel must be heated to its dash before it starts burning. Fuel must be heated to its ignition temperature before it starts burning. Next, fire produced by oil cannot be controlled by water. Fire produced by oil cannot be controlled by water. For combustion, dash gas must be present. For combustion, which gas? In the sun, heat and light are produced by dash reaction. In the sun, heat and light are produced by nuclear reactions. Okay. The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. Its call is ignition temperature. Right? The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. At the top of a matchbox, a chemical dash is used as a combustible substance. कौन सा chemical use करा जाता है as a combustible substance? Potassium. Potassium chloride is used as a combustible substance. Okay. Next, true or false? Food is a fuel for our body. It's a true. When magnesium strip is burned, magnesium chloride is produced. It's a false. When coke is burned, flame is produced.
It also false the fuel is only in liquid state. No, it's a false. The middle zone of a candle flame is yellow colored. It's a true. The calorific value of dung cake is very low. The calorific value of dung cake is very low. It's a true. Water is used to extinguish fire in electric equipment. It's false. Okay. Now start one sentence. What is combustion? A chemical reaction heat energy is called combustion. A chemical reaction in which a substance reacts with oxygen to produce heat energy is called combustion. Which form is energy produced during combustion? During combustion, energy is produced either as a flame or as a heat. During combustion, energy is produced either as a flame or as a heat. Okay. What are non-combustible substances? The substances which do not burn the presence of oxygen are called non-combustible substances. What are combustible substances? The substances which burn easily in the presence of oxygen are called combustible substances. What is ignition temperature? The lowest temperature at which a substance catch fire. The lowest temperature at which a substance catch fire is called its ignition temperature. Give the definition of calorific value. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel. The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called as calorific value. Give 3 examples of inflammable substance: petrol, alcohol, liquefied petroleum gas, CNG are inflammable substances. Okay. ये वन सेंटेंस दे, ये ऑलरेडी मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए दोबारा कर रही हूँ ताकि एक बार फिर से आपको ये चैप्टर रिवाइज हो गए कि कौन कौन से टॉपिक इसमें हमने कवर अप करे थे. इन अवर सिटीज़ CNG का हम ऑटोमोबाइल्स में यूज़ करते हैं, तो कैसे रिड्यूस पोल्यूशन हो जाता है हमारी सिटीज़ में, क्योंकि CNG क्या है, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है, हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस नहीं करता है और कोई भी ऐसे रेसिड्यू लीव नहीं करता आफ्टर बर्निंग, और ये क्लीन गैसियस फ्यूल है. ओके. फिर हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर. क्यों कंट्रोल कर सकता है CO2? क्योंकि जो CO2 गैस है वो हैवियर होता है ऑक्सीजन से. ठीक है. एंड कवर्स द कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक अ ब्लैंकेट, और एक ब्लैंकेट की तरह वो वर्क करता है, और जो कट ऑफ जो एयर का कॉन्टेक्ट है वो कट ऑफ कर देता है बिटवीन द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एंड द एयर. उनके बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो कट ऑफ कर देता है. राइट. कंबस्टिबल सब्सटेंस और एयर के बीच में, इसलिए वो एक्सटिंक्श फायर का वर्क करता है. इसको एज अ एक्सटिंक्शर भी बोलते हैं. क्लियर. ऑक्सीजन CO2 हैवियर है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, हैवियर होने की वजह से ये CO2 नीचे आ जाएगा और ऑक्सीजन ऊपर चली जाएगी. ठीक है. फिर क्या हो जाएगा, वो एक एक्सटिंक्शर का वर्क करेगा. विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वॉइल. वो कह रहे हैं कि जो गोल्ड स्मिथ हैं वो गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए कौन सी जोन यूज़ करते हैं फ्लेम का. वो मिडल पार्ट ऑफ द फ्लेम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पार्ट क्या है, वो बहुत लार्ज है. राइट. और वहाँ पे क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है और हायर टेम्परेचर वो देते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा मिडल जोन लार्ज और हाईएस्ट टेम्परेचर देता है. गोल्डस्मिथ ब्लो द मिडल जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर.
वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज अवेलेबल इन दिस पार्ट, इस यहाँ पे जो हीट होती है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, इसीलिए वो इस पार्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों मेल्टिंग करने के लिए गोल्ड और सिल्वर को। व्हाट इज फॉरेस्ट फायर? फॉरेस्ट फायर तो आपको पता ही है, जब सूखे ग्रास होते हैं, सूखे पत्ते होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत लो होता है। समर्स में वो क्या होता है, वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जैसे वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर रीच करते हैं फट से आग पकड़ लेते हैं, जिसके कारण पूरे फॉरेस्ट में आग लग जाती है, राइट। इसी को फॉरेस्ट फायर बोला जाता है। टाइप्स ऑफ कंबशन, रैपिड है, स्पॉन्टेनियस है, एक्सप्लोजन है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर जोन ऑफ अ कैंडल है, आपको पता है इनर मोस्ट जोन है, मिडल जोन है, आउटर मोस्ट जोन है। इनर मोस्ट जो ब्लैक पोर्शन होता है, राइट, वहाँ पे कंबशन होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, नो कंबशन इज टेक प्लेस देयर। ओके, मिडल जोन में कंबशन होता है पर पार्शियल होता है, और जो आउटर मोस्ट जोन है वो फुली कंबशन होता है। ओके, तो मिडल जोन है वो येलो कलर का होता है, जो आउटर जोन है वो ब्लू कलर का होता है। ओके, फिर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल, फ्यूल के हार्मफुल इफेक्ट्स हमने डिस्कस करे थे कि क्या होता है, इसमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिसीजेज हो जाती है लोग पीपल्स को, है। ओके, तो जो इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो हमारे एटमॉस्फेयर पे, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। फिर जो कोल और डीजल को बर्न जब होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वो बहुत सफोकेटिंग गैस है, इसीलिए ये सब क्या है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं फ्यूल के। फिर रीजंस थे, साइंटिफिक रीजन, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। क्यों? क्योंकि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, यदि हम वहाँ पे वाटर का यूज़ करेंगे तो हमें ही शॉक लग जाएगा, इसलिए वो एज एक्सटिंक्शर नहीं यूज़ कर सकते। एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, क्योंकि एलपीजी क्या है, एक तो वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है लो होता है, फटाफट आग पकड़ लेता है और उससे कोई धुआं नहीं होता और पीछे से कोई भी ऐश वगैरह क्रिएट नहीं करता है, इसीलिए जो एलपीजी बेटर है डोमेस्टिक फ्यूल, बेटर देन अ वुड। ओके, डिफरेंस था एलपीजी और वुड का, तो तुम्हें पता है वो गैसियस फॉर्म में है, वो सॉलिड है, वो कोई डज नॉट लीव एनी रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, वो रेसिड्यू करता है लाइक ऐश, वो स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता, वो स्मोक प्रोड्यूस करता है, वो इजीली बर्न होता है, वो इजीली बर्न नहीं होता, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, उसका हाई है, वो डज नॉट कॉज मोर पोल्यूशन, एलपीजी नहीं करता, उसमें पोल्यूशन कॉज होता है, उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू है हायर है देन अ वुड, उसके वुड का जो कैलोरीफिक वैल्यू है लेस है देन एलपीजी। फिर डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है 45,000, हाइड्रोजन का कितना है 1,50,000, एलपीजी का 55,000। में हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।